So what is intermediate value theorem? So let's revise that first, and then हम क्या करेंगे आगे का bisection method we'll try to understand. Okay. What's wrong with it? So intermediate value theorem. So statement was, let f of x be a function. Statement was, let f of x be a function. Something is wrong. What's wrong? So let f of x be a continuous function defined on the interval a comma b. Okay, let f of x is any function which is defined on the interval a comma b. So we are given one function and we are given one interval. So when I will say that the root of this function is existing in this interval a comma b. Now what do I mean by the root? Root, it is that point at which your function becomes 0. The function value becomes 0. So तो ये function का root exist हो रहा है क्या ये interval में? First we are going to check that. How do we check that? How to check that कि the root is existing in the given interval? So for that, what you will be calculating? You'll be calculating f of a and f of b. So if f of a and f of b are of opposite sign, what do you mean by opposite sign, students? What do you mean by opposite sign? Plus minus. That is, one is plus, another one will be minus, or the one is negative or the other one will be positive. Positive. So if one is positive and other one is negative, so can you tell me what will be their multiplication value? Will they be positive or they will be negative? Negative, correct. Because एक positive है, एक negative है, so दोनों का multiplication क्या होगा? Negative होगा, so it is going to be less than 0. So if this condition is satisfied, that is, if f of a and f of b are y coordinates. If y coordinates are negative, are of opposite sign, then you will say that the root is existing in the interval. Then there exists at least one c. x से ज़्यादा भी उस interval के अंदर root हो सकते हैं, but हमें तो x ही मतलब है. So then there exists at least one c belonging to the interval a comma b such that f of c equals to 0. f of c 0 हो गया, मतलब c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा रूट ना, because at this point c my function is becoming 0. और ये c किधर लाइक करेगा? c ये इंटरवल में से कोई तो एक वैल्यू होगा, तो c belonging to this interval मतलब क्या? ये c तो इनके बीच में कहीं तो c रहेगा. Okay, so when you are given one function and when you are given one interval and you are asked to check whether root of this function lies in this interval or not, basically आपको एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो ये इस इंटरवल को क्या करे, बिलोंग करे, और वो क्या हो, इसका रूट हो. रूट हो मतलब क्या? At that point root value of this function should become 0. तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? तो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो f of a and f of b. If they're of opposite sign, then the root will exist in that interval. क्या आपको ये थ्योरम समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any query in this? No, ma'am. Okay, ना ये तो थ्योरम तो कल तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया. एक सेकंड, something went wrong. आज ये बहुत सेंसिटिव हो रहा है, तो जल्दी पूरा चला गया.
Oh, it all went. So students, तो प्रॉब्लम है इसकी। तो जो भी मैंने लिखा अभी it all went, cannot find it. So OneNote crashed the last time you this page, the page may be corrupted or sent. चलो कोई नहीं, हम दोबारा start करते हैं. So I will not write that theorem again. So meaning you all understood, no? ये लिख लेते हैं Yes, कि ma'am. notes share करना होता है ना इसलिए. So let f of x be a continuous function. Let f of x be a continuous function defined on the interval a comma b. Okay, defined on a comma b. If f of a and f of b are of opposite sign, then there exists at least one c in the interval a comma b, such that f of c is equals to 0. f of c 0 हो गया, मतलब c क्या हो गया? क्या हो गया c बच्चों? Root 0. Yes, that is there exists a root c. Okay. So कोई भी फंक्शन और कोई भी एक इंटरवल देते हैं, उस फंक्शन का रूट है या नहीं उस इंटरवल में, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? f of a and f of b. So if they are of opposite sign, then you say that the root is existing in the interval a comma b. Okay. Now, अभी ये concept आपको याद रखना है because this concept we are going to apply in the bisection method. So now we'll move towards the bisection method. I will explain कि bisection method work कैसे करता है. ठीक है? तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के हेल्प से. सो अच्छा ये एक क्वेश्चन बताओ कि क्या ये थ्योरम ने हमें बताया कि रूट वो पॉइंट क्या होगा जो रूट होगा, और इट इज टेलिंग अस कि ओनली दिस थिंग कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है ये इंटरवल में. दिस इज गिविंग अस द रूट, और इट इज जस्ट टेलिंग अस कि इन दिस इंटरवल द रूट विल एग्जिस्ट. व्हाट डू यू थिंक? मैम रूट एग्जिस्ट कर रहा है, बस बता रहा है. सिर्फ रूट एग्जिस्ट कर रहा है इतना बता रहा है, मतलब रूट है ये इंटरवल में. आप ढूंढ लो ये इंटरवल में रूट है. अब आप बस ढूंढ लो कि वो पॉइंट क्या होगा, वो रूट क्या होगा, वो ढूंढ लो. मतलब आपको इट इज लाइक कि आपको बस जगह बता दिया कि ये जगह पे खजाना है. अब वो खजाना किधर है वो आप जाके ढूंढो. इट इज लाइक दैट. तो आपको वो लोकेशन बता दिया, वो लोकेशन में किधर है आपका खजाना. इट इज लाइक दैट. सो इधर हमारा लोकेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज माय लोकेशन ओवर हियर? A and B. इंटरवल. करेक्ट. लोकेशन हमारा इधर क्या है? इंटरवल. और वो खजाना क्या है हमारा? C. यस. सी मतलब क्या? Root. यस करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. ये हुई ना बात. सो वी आर गिवन दैट लोकेशन. लोकेशन हमारा क्या है? हमारा इंटरवल. एक सेकंड. सो लोकेशन इज आवर इंटरवल, एंड अब जो खजाना है वो हमारा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा. सो वो रूट हमें ढूंढना है. तो इंटरमीडिएट वाले थ्योरम सिर्फ आपको लोकेशन बता रहा है. ठीक है. और आपको जो खजाना है वो आपको खजाना ढूंढने में कौन मदद करेगा? वो खजाना ढूंढने में कौन मदद करेगा बताओ? बाइसेक्शन मेथड. करेक्ट. खजाना या फिर रूट कह लो, वो रूट ढूंढने में कौन मदद करेगा? आपका बाइसेक्शन मेथड. ओके. So this is my x-axis, this is my y-axis, and this is origin. Okay. Now, अभी ये जो इंटरवल है a, b, ये किधर प्लॉट करूं मैं? x एक्सिस पे प्लॉट करूं या y एक्सिस पे?
X axis. यस, बिकॉज क्यों ये ए और बी क्या होते हैं, इनपुट वैल्यू होते हैं ना, और इसको हम लोग पुट करते हैं किसमें, फंक्शन में। तो फंक्शन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को आप किधर प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आ रही है ना, मतलब समझा पा रही हूँ कि नहीं मैं आप लोगों को? Yes, ma'am. ma'am. चलो. ठीक है, चलो तो ये इंटरवल ए और बी प्लॉट करते हैं। सपोज हियर इज माय ए, so this interval is my A, and suppose here is my B, so this interval is okay, so this is my B. Okay, next, now next what I'm explaining, ये हो गया A and B इंटरवल के पॉइंट्स प्लॉट हमने कर लिए। अभी ये इंटरवल में रूट कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये लोकेशन में खजाना कब होगा मेरा, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना Different. चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए ना। तो हम मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो माना है वही मानो, आप उल्टा भी मान सकते हो, पर इधर हम जस्ट सपोजिंग दैट कि सपोज एफ ऑफ ए का साइन क्या है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ बी का साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, आप वाइस एंड वर्सा भी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, बट हियर आई एम टेकिंग एफ ऑफ ए एज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी एज नेगेटिव। आई होप दैट इज अंडरस्टूड कि मैंने ऐसा ऑपोजिट साइन क्यों लिया। Yes, ma'am. then only root will exist हो ना। अभी हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए इनपुट दिया तो हमको आउटपुट क्या मिला, एफ ऑफ ए, बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला, एफ ऑफ बी, जिसमें से एफ ऑफ बी क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो डू वी नो द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, डू वी नो व्हाट दे आर, डू वी नो द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी? हमें बस इतना पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज समवेयर यू नो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर होता है, अपवर्ड साइड। तो सपोज ओवर हियर इज माय एफ ऑफ ए एंड समवेयर इन द डाउन साइड क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा। समझ में आया? सो फॉर Yes, अंडरस्टूड, ma'am. ये Yes, ma'am. डायग्राम जो ड्रॉ करे आपको पूरी चीजें समझ में आ रही है ना, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम होगा तो लेट मी नो। चलो ये कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट भाई, कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ मैं, कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ मैं, A comma F of A, B. ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो कैसे प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, कैसे प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट किया जाता है बच्चों, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं, अगर ये ए कॉमा एफ ऑफ ए कैसे प्लॉट करोगे? Ma'am, we take the value that is on each axis. करेक्ट, तो एक्स एक्सिस पे हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ए लेंगे, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेंगे हम, एफ ऑफ ए। F of A. तो ये रहा मेरा, ये जो पॉइंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी माय ए कॉमा एफ ऑफ ए। मतलब हम एक्स एक्सिस पे ए पे है और वाई एक्सिस पे कहां पर है, एफ ऑफ ए पर है। सो ये मेरा पॉइंट हो गया। नाउ लेट अस प्लॉट द अदर पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। सो एक्स एक्सिस पे आप बी पे जाओगे और वाई एक्सिस पे आप कहां तक जाओगे, एफ ऑफ बी। तो ये मेरा पॉइंट हो गया। सो दिस इज माय पॉइंट बी कॉमा एफ ऑफ बी। नाउ अभी सिंस माय फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। कैसा भी कर्व हो सकता है ना, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया मेरा फंक्शन। ठीक है, सो फॉर अंडरस्टूड, मतलब कर्व कैसा भी हो सकता है। अब रैंडमली मैंने ये ड्रॉ किया है तो डोंट टेक इट कि मैम ऐसे ही कर्व आएगा, रैंडमली आई एम ड्राइंग। ठीक है, सो ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। दिस इज माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हो गया। So far everything is clear. Diagram मैं कैसे draw कर रही हूँ, is this, are you all understanding it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next, तो अब देख सकते हो कि ये इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. कर रहा है। ये इंटरवल जो था ए कॉमा बी के अंदर ही मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, at this point, correct? No, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। So at this point my function is cutting the x axis. तो क्या ऐसे था कि root is existing for this graph, Yes, for ma'am. this Yes, function. Yes, ma'am. Yes, root exist हो रहा है, और जहाँ पे वो कट कर रहा है वही पॉइंट रूट होगा कि नहीं इसका, करेक्ट? वही पॉइंट इसका Yes, रूट होगा। Yes, ma'am. एक सेकंड, ये थोड़ा ना आज वन नोट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। देखो एक चीज सिलेक्ट करने के लिए पूरा एग्जिट ही हो जा रहा है।
थोड़ा कोऑपरेट करना। आई नो इट्स वेरी अनोइंग। दिख रहा है क्या बच्चों ये स्क्रीन मेरी अभी? नो मैम, अब भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी तक तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं इसको अभी क्या हो गया। माउस पेन शायद मेरा वर्क नहीं कर रहा, अदरवाइज तो अच्छा चल रहा था। Okay. So as you can clearly see in this interval, the function is cutting the x-axis. So जहाँ पे वो कट कर रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका रूट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरा फंक्शन, मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? एट दिस पॉइंट मेरा y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है मतलब मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है ना। फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, यही तो चाहिए। ये पूरे चैप्टर में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम बस ढूंढ रहे हैं रूट ऑफ द फंक्शन। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज रूट। बट ये ढूंढेंगे कैसे कि व्हाट इज दैट एग्जैक्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट वो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे ढूंढेंगे आपको? व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वेन्यू, वेयर इज माय खजाना? ठीक है, तो उसके लिए हम बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या? इट इज xm इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2। ठीक है, so this is the formula of bisection method, that is a plus b by 2। ये a plus b by 2 क्या है बच्चों? a plus b by 2 ये इंटरवल में किधर आएगा बताओ? ये इंटरवल a, b में a plus b by 2 किधर लाई करेगा? I know I ask you a lot of questions before explaining. और b के a और b के किधर लाई करेगा? What do you say? मैम स्क्रीन गया। किधर लाई करेगा? आपने क्या बताया? Middle of A and B. मिड में लाई करेगा। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। मिड में लाई करेगा बिकॉज a plus b by 2 इज देयर नो, और a plus b by 2 क्या होता है? इट इज द मिडल वैल्यू, मिड वैल्यू है ना। तो ये मिड वैल्यू इधर क्या होगा? इधर सेंटर में लाई करेगा। सेंटर में लाई कर रहा है कि नहीं है? सो दिस इज योर xm इज इक्वल्स टू a plus b by 2। इतना समझ में आया? सो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने लोकेशन बता दी है भाई कि ये लोकेशन में आपका खजाना है ना। वो खजाना उस लोकेशन में एग्जैक्टली किधर है वो कौन बताएगा? बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड एंड द सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट वन वी आर स्टडीइंग द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है? a plus b by 2। ये a plus b by 2 किधर लाई करेगा? इंटरवल के मिड में लाई करेगा। ठीक है, नाउ कैन यू सी दिस? ये xm, तो ये मैंने बोला कि xm आपका क्या होगा? रूट होगा। अभी रूट कब होगा? जब f of xm का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? दिस xm रूट होगा कब? जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट ये एट दिस पॉइंट, एट दिस xm, क्या आपका फंक्शन वैल्यू 0 हो रहा है? जस्ट चेक, फंक्शन वैल्यू 0 हो रहा है क्या? एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? एट दैट पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? 0 हो रहा है। 0 किधर हो रहा है बेटा? कर्व देखो ना, कर्व मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है एट xm, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है वो पूछ रहे हैं। सो एट xm y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? देखो किधर है? F of A plus B के। ये देखो, ये रहा आपका xm पॉइंट। y कोऑर्डिनेट कैसे देखने का? उसके करस्पॉन्डिंग देखो ना, y कोऑर्डिनेट किधर जा रहा है? दिख रही है? इधर आ रहा है ये y कोऑर्डिनेट। मैम 0 नहीं हो रहा तब। तो 0 तो नहीं हो रहा है ना, तो रूट होगा क्या? नहीं मैम। xm रूट होगा क्या? No मैम। नो मैम। नहीं होगा ना। हाँ, वेरी गुड। सो बच्चों आपको समझ में आएगा क्यों एट xm फंक्शन इज नॉट 0? बिकॉज देखो ना, मैम। ग्राफ देखो, ग्राफ देख। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मुझे नहीं समझा वो एफ ऑफ एक्स और 0 क्यों नहीं आया? एट xm f of xm 0 क्यों नहीं है? अब तुम ही देखो, वही तो मैं बता रही। देखो ये xm है, ये रहा आपका फंक्शन। ये फंक्शन मतलब क्या? आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देखो एट a आपका फंक्शन वैल्यू किधर है? ये एट दिस पॉइंट है। एट b आपका फंक्शन वैल्यू किधर है? एट दिस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? एट b देखो ना, फंक्शन किधर है? इधर है, नीचे। तो एट xm देखो, एट xm आपका फंक्शन वैल्यू किधर है? नीचे ग्राफ पे देखो, ग्राफ आपका क्या है? y कोऑर्डिनेट है। समझ में आया गौरव? सो एट xm, गौरव यस मैम। क्या समझ में आया?
एट एक्सएम, हाँ मैम। ये जो एक्सएम है आपका, एट एक्सएम आपका जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है। अगर मैं कोई एक ये पॉइंट देती हूँ तो एट दिस पॉइंट आपका फंक्शन क्या इधर है, एट दिस पॉइंट आपका फंक्शन क्या ये रहा, एट दिस पॉइंट आपका फंक्शन क्या ये रहा, एट बी आपका फंक्शन किधर है, ये रहा नीचे जो हमने ड्रॉ किया है, एट सी आपका फंक्शन किधर है, मैम बीच में। एट, वाह वाह, एट सी तो फंक्शन कट कर रहा है ना, हाँ एट सी तो फंक्शन कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एट सी तो फंक्शन का वैल्यू तो 0 है बेटा। आपको ग्राफ के कर्व को देखना है, कर्व को देखो। अब बोलोगे कि मैम एक्सएम पे क्यों नहीं लिया, बिकॉज एक्सएम पे तो कर्व है ही नहीं ना, एक्सएम पे कर्व क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया था, ठीक है, बट इट इज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं सी में पूछूं तो सी पे तो ग्राफ कट कर रहा है, मतलब आपका y कोऑर्डिनेट क्या बच्चा 0 है, ठीक है। अभी बात समझ में आई कि क्यों एट एक्सएम 0 नहीं है फंक्शन। Yes, तो yes, ma'am. अगर हाँ, अगर एक्सएम, अगर आपका रूट होगा, अगर एक्सएम पे फंक्शन का वैल्यू 0 तो ग्राफ क्या होना चाहिए, एक्सएम से पास होना चाहिए। तो ग्राफ एक्सएम से पास हो रहा है क्या, जो मैंने एक्सएम कैलकुलेट किया, क्या ग्राफ एक्सएम से पास हो रहा है, No, ma'am. No, नो ma'am. नहीं मैम। हो रहा है ना, तो इसीलिए एक्सएम क्या होगा, रूट नहीं होगा, इसलिए एक्सएम क्या होगा, रूट नहीं होगा। फिर बोलोगे कि मैम आपको ये तो हेल्प नहीं कर रहा है हमको बताने को, हेल्प कर रहा है क्या बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला? आपने No, बोला ma'am. था कि मैम बाइसेक्शन मेथड तो बता देगा एग्जैक्ट लोकेशन, बट ये तो मिड में आ गया, तो मिडल वैल्यू इज नॉट माय रूट, तो अभी क्या करने का, सो कोई बात नहीं। तो क्या करेगा ये एक्सएम, ये जो मिड वैल्यू है क्या करेगा, हमारे दो इंटरवल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इंटरवल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चा, a कॉमा एक्सएम हो जाएगा, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, एक्सएम कॉमा बी। B. गॉट इट? तो देखो पहले तो Yes, बहुत ma'am. बड़ा लोकेशन दिया हमको, फिर हमने उस लोकेशन को क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधा ये, आधा लेफ्ट साइड एरिया, आधा राइट साइड एरिया ना। अभी आपके पास आप खड़े हो, आप बताओ लेफ्ट साइड जाओगे कि राइट साइड जाओगे? Left side. लेफ्ट साइड तो बहुत इजी है, बिकॉज आपको पता है कि आपका खजाना किधर है। अगर आपको नहीं पता होता तो क्या करते हो, तो क्या करोगे? Opposite side. तो अभी देखो, तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये इंटरवल है ना, मतलब दो रास्ते, मतलब हमारे ये दो इंटरवल हो गए। तो ये दो इंटरवल में से कौन सा इंटरवल हम कंसीडर करेंगे, तो जहाँ पे रूट लाई करेगा वही इंटरवल कंसीडर करेंगे ना बच्चों, जहाँ पे मेरा रूट होगा वहीं पे हम कंसीडर करेंगे, वही इंटरवल कंसीडर करेंगे। तो कोई इस इंटरवल में रूट है या नहीं कैसे चेक करते हैं, ये इंटरवल में रूट है या नहीं कैसे चेक करोगे? कैलकुलेट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एक्सएम। सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्सएम कैलकुलेट करो। अगर दोनों का साइन क्या आता है, ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट है क्या, देखो एट ए एफ ऑफ ए कितना है, पॉजिटिव है, एट एक्सएम आपका एफ ऑफ बी क्या है, नीचे है, मतलब नेगेटिव है। सो क्या दोनों ऑपोजिट साइन के हो गए? Yes, ma'am. यस, दोनों ऑपोजिट हो गए। सो रूट विल एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल। आई बात समझ में? सो ये तो ma'am. मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम लेफ्ट साइड जाना है, बट हम एवरी टाइम तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है? सो जब भी इंटरवल में रूट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी बात आती है, तो आप हमेशा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो, which tells you that calculate f of a and f of xm और दोनों का साइन चेक करो। समझ में आई बात? सो अगर f of a f of xm का साइन ऑपोजिट हो गया तो रूट वो इंटरवल लेकर आप आगे बढ़ोगे, और अगर दोनों का साइन सेम आता तो क्या करोगे? अगर दोनों का साइन सेम आया तो क्या करोगे? Discard, ma'am. उसको नहीं consider करेंगे. किसको कंसीडर करोगे फिर? Opposite sign वाले. यस, करेक्ट। तो अगर आपने चेक किया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स दोनों का साइन क्या हो गया, सेम आ गया, तो आप क्या करोगे, वो इंटरवल कंसीडर नहीं करोगे, वो डिस्कार्ड करोगे, और दूसरा इंटरवल जो हो रहा था उसे आप कंसीडर करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे। वेरी गुड, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आप सभी को कि क्या हो रहा है इधर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए कॉमा एक्स क्या हो रहा है, हमारा इंटरवल हो रहा है आगे जाने के लिए। फिर अगेन
हम क्या, पहला इंटरवल क्या था हमारा, a कॉमा b, दिस वाज योर इंटरवल। अभी इंटरवल क्या हो गया, छोटा हो गया ना, छोटा हो गया क्या हो गया, a कॉमा xm हो गया, ठीक है। सो किसका वैल्यू सेम है और किसका वैल्यू चेंज हो गया, B का। यस। A का सो same a है, B का का वैल्यू, अगर हाँ a का वैल्यू क्या एज इट इज ही है, बट b का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, अभी एक्सेप्ट हो गया। समझ में आया। तो जब तो आप दोबारा क्या करोगे, बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करोगे। बाइसेक्शन मेथड क्या बोल रहा है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करो, और तो अगेन आप क्या करोगे, एक्सएम कैलकुलेट करोगे, बट दिस टाइम ए का वैल्यू एज इट इज रखोगे, बट बी की जगह पे क्या रखोगे, जो पहले आपने एक्सएम कैलकुलेट किया था। बी का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया ना, बी का वैल्यू क्या हो गया, अभी एक्सएम। तो ये जो नया बी का वैल्यू मिलेगा, दैट यू विल पुट इट ओवर हियर एंड अगेन यू विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये स्टेप्स कहते हैं, फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप पे आप हो, तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, या तो ए का वैल्यू चेंज होगा या तो बी का वैल्यू चेंज होगा। तो किसका वैल्यू चेंज हो गया, अगर सपोज आपका ये इंटरवल होता एक्सएम कॉमा बी, ठीक है, अगर दूसरा इंटरवल होता तो क्या होता, पहला इंटरवल क्या था ए कॉमा बी, अब इंटरवल क्या हो गया एक्सएम कॉमा बी, तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, A का। हाँ हाँ हाँ, ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, अब बी का वैल्यू क्या सेम। सो व्हेन यू गो टू द सेकंड स्टेप, नो, जब आप सेकंड स्टेज पे जाते हो, मतलब आपने पहले लोकेशन ढूंढ के वो जगह पे आ गए, फिर उस जगह को डिवाइड कर दिया ना, अगेन आपको वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द उस एरिया का मिडल वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपका, या तो ए का वैल्यू चेंज होगा तो बी का वैल्यू चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली और वो वैल्यू किससे चेंज होता है, एक्सएम से चेंज होता है, ठीक है। सो अगेन यू विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू। सो अगेन अभी ये जो इंटरवल है ना आपका, ये इंटरवल, उसका आप मिडल वैल्यू निकालो। सो मिडल वैल्यू किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आपको सी मिल जाएगा। तो आप फिर अगेन कैलकुलेट करो एफ ऑफ एक्सएम, तो एफ ऑफ एक्सएम का वैल्यू कितना आएगा इस बार, 0 आ जाएगा ना, और 0 आ गया तो यू आर डन। फिर आप उधर क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे एंड यू गॉट द रूट। So since you will, if you'll observe ना, आपका इंटरवल क्या होता है, every time it gets divided into 2 equal parts, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइसेक्शन मेथड, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ में आया। अभी बाइसेक्शन मेथड क्या करते हैं, हमारा जो इंटरवल रहता है ना, हमारे इंटरवल को और छोटा छोटा करते जाता है, सो दैट कि हमें वो रूट वाला पॉइंट मिल जाए, जहाँ पे हमारा रूट, वो एरिया मिल जाए जहाँ पे हमारा खजाना क्या है, बहुत करीब है। आपको जितना छोटा छोटा लोकेशन में देते रहोगे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया में खजाना है, अब इंडिया में तो कितने सारे स्टेट्स होते हैं, अभी किधर है खजाना, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि मुंबई में खजाना है, फिर मुंबई में तो कितना बड़ा है, अब किधर ढूंढने का खजाना, फिर मैंने आपको बता दिया कि सपोज यू नो फॉर एग्जाम्पल थाने ले लिया, अभी थाने में आपका वो खजाना है। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इंटरवल क्या होता है, छोटा छोटा, तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर होगा ना, आपको खजाना ढूंढना ज्यादा इजी रहेगा, रूट ढूंढना ज्यादा इजी रहेगा, करेक्ट। खजाना और लोकेशन के चक्कर में एग्जैक्ट वर्ड मत भूल जाना, लोकेशन मतलब इंटरवल, खजाना मतलब रूट। तो जितना छोटा इंटरवल उतना ज्यादा क्या होगा, आपको ज्यादा आप रूट के करीब होंगे, उतना ज्यादा आप रूट के क्या होंगे, करीब होंगे। तो गिव अप नहीं करने का, इंटरवल छोटा होते जा रहा, करते जाओ। देन जो फिर लास्ट में अगर आप जो मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी द रूट, और जब रूट मिल जाएगा तो आप स्टॉप कर दो। ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझा, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। समझा। समझ में आया ना, पक्का समझ में आया Yes, सभी ma'am. को, Yes, पक्का ma'am. समझ में आया। अच्छा वेरी गुड। तो मैं आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दूं, एल्गोरिथम इसका लिखूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर, अभी आज टाइम मिला तो आज प्रॉब्लम करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। चलो मुझे बिफोर आई राइट द एल्गोरिथम आप मुझे बताओ, ठीक है। यस सुफियान, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे, आप टेंशन मत लो, ये तो हम थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि क्या होने वाला है बाइसेक्शन में, प्रॉब्लम तो हम करेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सो मैं चलो जल्दी से बताओ पहले क्या करने का, क्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फंक्शन और एक इंटरवल। पहली चीज आप जो करेंगे वो क्या करेंगे आप, द फर्स्ट थिंग व्हिच आर गोइंग टू डू विद दोस फंक्शन एंड इंटरवल, व्हाट इज दैट, What में? एक फंक्शन, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो पहली चीज जो आप चेक करोगे वो क्या होगी, Well, first you'll find the f of a and f of b and see the signs. सी द साइंस, वेरी गुड। तो पहले आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करोगे,
और ढूंढोगे कि रूट है कि नहीं। दोनों साइन का अगर दोनों के साइन ऑपोजिट आते हैं देन रूट इज एग्जिस्टिंग इन द इंटरवल। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मुंबई में खजाना है, तो मुंबई में एक्चुअली खजाना है भी या नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इधर हमारा जो मुंबई हमारा क्या इंटरवल है, तो a कॉमा b में रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहले वो चेक करो। सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आप कैलकुलेट करोगे और दोनों का साइन करना चाहिए ऑपोजिट। दैट मींस पहले आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ढूंढोगे। द सेकंड थिंग, फिर आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करोगे। व्हाट इज द फॉर्मूला बाइसेक्शन? xm is equals to a plus b upon a प्लस बी बाई 2 मतलब मिड वैल्यू। ओके, तो आप उस इंटरवल का मिड वैल्यू ढूंढोगे। अगर वो मिड वैल्यू रूट हुआ तो आप आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? no ma'am. नो। तो आपको रूट मिल गया, आपका काम खत्म। आपका पूरा काम वही है कि रूट ढूंढो। रूट मिल गया, आपको खजाना मिल गया, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, यू विल स्टॉप इट देयर ओनली। और अगर रूट मतलब नहीं मिला, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं आया, तो क्या करोगे? We will take the xm as an interval and try again. सॉरी, We will take xm as an interval and try again. एक्सएम इज एन इंटरवल। एक सिंगल पॉइंट इंटरवल नहीं होता बेटा, 2 पॉइंट्स हाँ, लगते हैं A- इंटरवल बनाने में। a और b and xm. अच्छा अच्छा a और b. अच्छा, रुको जरा। सो देखो, आप जो बता रहे हो ना, वो ये बता रहे हो, ये आपका रहा इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, आपने मिड वैल्यू निकाला, मिड वैल्यू इधर आया आपका। ठीक है, अब ये मिड वैल्यू क्या है आपका? रूट नहीं है। रूट नहीं है मतलब एट दिस पॉइंट आपका एफ ऑफ एक्स एम क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है। तो ये मिड पॉइंट क्या करता है बच्चों? ये मिड पॉइंट क्या करेगा? हमारे इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। द फर्स्ट पार्ट इज a कॉमा एक्सएम एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सएम कॉमा बी। अब 2 इंटरवल मिल गया आपको। अब 2 इंटरवल में से कौन से इंटरवल पे आप काम करोगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन अप्लाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। Intermediate theorem, yes ma'am. yes, again you will check the sign of f of a and f of x। अगर ये इस इंटरवल में रूट है तो अगर ये दोनों का साइन ऑपोजिट आता है, मतलब ये वैल्यूज का नहीं, f of a और f of x का हमेशा फंक्शन वैल्यू देखेंगे। तो अगर ये दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? ऑपोजिट आता है, मतलब ये इंटरवल में रूट एग्जिस्ट करेगा और ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर वाइस एंड वर्सा हुआ तो मतलब इन दोनों का साइन सेम आ गया। तो अगर ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स दोनों का साइन क्या हो गया? सेम, मतलब रूट तो पक्का इसके अंदर नहीं है, मतलब खजाना इसके अंदर नहीं है। तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे और किसको कंसीडर करोगे? इसको कंसीडर करोगे। मैंने विल गो टू द सेकंड स्टेप, और जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, देन जब आप सेकंड स्टेप में जाओगे, सो आपको ये देखना है कि किसका वैल्यू चेंज हुआ है, ए का वैल्यू चेंज हुआ है कि बी का वैल्यू चेंज हुआ है। ठीक है, तो सपोज मैंने ये इंटरवल लिया एक्सएम कॉमा बी। अगर मैंने इंटरवल एक्सएम कॉमा बी लिया तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? a का ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, बी का वैल्यू क्या रखोगे? एज इट इज रखोगे। अगेन आप क्या निकालोगे? उसका मिडल वैल्यू निकालोगे। किधर गया मेरा कर्सर? हाँ, अगेन उसका क्या निकालोगे? आप मिडल वैल्यू निकालोगे। अगेन एक्सएम मिलेगा आपको। सपोज को मैं एक्सएम 1 लिखती हूँ। सो अगर ये एट दिस पॉइंट अगर आपका फंक्शन वैल्यू क्या होता है? 0 होता है तो वेरी गुड। और अगर 0 नहीं हुआ तो अगेन ये क्या होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा आपके इंटरवल को। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगेन कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है? अगेन अप्लाई द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। समझ में? सो दिस वे यू विल गो ऑन फाइंडिंग द मिडल वैल्यू टिल यू गेट द रूट। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, चलो मैं अल्गोरिथम लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना समझ में आए उतना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो भूल जाओगे फिर। तो बस याद रखना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें हेल्प करता है लोकेशन ढूंढने में, मतलब इंटरवल ढूंढने में। और दिस बाइसेक्शन मेथड इज गोइंग टू गिव अस द रूट। जरूरी नहीं कि एक बार डाला और तुरंत मिल जाए रूट। आपको करते रहना है, स्टेप पे स्टेप आगे बढ़ते रहना है जब तक आपको रूट ना मिल जाए। तो गिव अप नहीं करना है। So I'll just write down, 1 minute है, just give me some time। तो ये लगता है टाइम तो हो चुका है, तो मैं अल्गोरिथम लिख देती हूँ। आज अल्गोरिथम हम लिख के ले लेते हैं और कल हम इसके ऊपर क्या करेंगे? प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो अल्गोरिथम हम लिख के लेंगे अभी। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि
हमें फंक्शन दिया रहता है क्वेश्चन में, कभी कभी इंटरवल नहीं दिया रहता है। भाई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? अभी मैंने बोला कि फंक्शन और इंटरवल दोनों पता होना चाहिए, बट अभी मैं बोल रही हूँ कि इंटरवल नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इन दैट केस कैसे फाइंड आउट करने का इंटरवल? ठीक है, तो वो आपको बताऊंगी जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो फॉर नाउ आई विल जस्ट राइट ऑन द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब वही स्टेप्स, प्रोसेस आप कह लो। सिंस आप आईटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं। एल्गोरिथम फॉर बाइसेक्शन मेथड। सो यही आप अच्छे से समझ गए ना बच्चों? मतलब आप रिमेनिंग 3 मेथड्स भी अच्छे से कर लोगे। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया ना, आपको क्या लगता है समझ में आया, तो आप Yes, ma'am. रिमेनिंग 3 मेथड्स भी कर लोगे। प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टेप 1, तो पहला स्टेप क्या कहता है कि चूज 2 रियल नंबर्स ए एंड बी। ये क्यों चूज करना है भाई? ये एंड बी क्यों चाहिए हमको? सो दैट कि हम चेक करेंगे कि रूट किधर लाई कर रहे हैं, वो लोकेशन हमें पहले ढूंढना है। हाँ ओके, तो हमें पहले लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे हमारा क्या है, रूट है। मतलब हमें बेसिकली इंटरवल ढूंढना है। तो चूज 2 रियल नंबर्स ए एंड बी। चूज 2 रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट, कोई भी रियल नंबर नहीं चलेंगे, ऐसे नंबर्स होने चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? तो ये ए एंड बी कैसे चूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, आप टेंशन मत लो। तो आपको इंटरवल ढूंढना है कि वो इंटरवल ऐसा ढूंढो कि एफ ऑफ एंड एफ ऑफ बी क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। देन स्टेप 2, कैलकुलेट और कंप्यूट एक्सएम। फिर आप ये कंप्यूट करो एक्सएम व्हिच इज a plus b by 2। देन थर्ड स्टेप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 3 केस आएंगे। केस 1, इफ f of xm is equals to 0, अगर आपने xm जो कैलकुलेट किया, अगर उसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या हो जाता है, 0, तो व्हाट यू विल से देन व्हाट यू विल से? अरे बोलो। Root exists. xm is the root. Yes, then xm is the root of the function. xm is the root of the function f of x. Okay, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर f of xm is not equals to 0, ओके, देन क्या चेक करोगे? चेक करो कि f of a और f of xm का साइन क्या है। ओके, सो इफ f of a into f of xm is less than 0, less than 0 मतलब क्या हो गया? दैट इज f of a and f of xm are of same sign, correct? No, ma'am. बोलो, are of same sign? No, ma'am. Different sign. Yes, so अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 दैट मींस f of a and f of xm are of opposite sign। तो कौन सा इंटरवल कंसीडर करेंगे? a comma xm. Correct, then root lies in the interval। क्या लूंगा इंटरवल? a comma a xm. comma x है, ठीक है। देन एंड गो टू स्टेप 2, वापस से हम क्या करेंगे? स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, दैट इज मीड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट दिस टाइम b का वैल्यू क्या रहेगा? xm हो जाएगा। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? Yes, ma'am. सो अगर आपका एक्सएम रूट मिल गया तो यू आर डन। अगर एक्सएम रूट नहीं है तो हमारे इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पहले एफ ऑफ और एफ ऑफ एक्सएम का साइन चेक करो। अगर दोनों का साइन क्या हो गया, ऑपोजिट, मतलब रूट किधर लाई कर रहा है, कॉमा एक्सएम में, सो आप अगेन स्टेप 2 परफॉर्म करोगे विद b इज इक्वल्स टू एक्सएम। केस 3 भी हम देख लेते हैं। केस 3 क्या होगा? इफ f of a into f of xm greater than 0 हुआ तो, इससे क्या मतलब हुआ?
मैम They are same sign. हाँ बोलो बोलो मैम, बोलो और मेरे को ये हाँ नहीं बोलो। समझा b इज इक्वल टू xm कैसे मतलब हुआ? पूरी रामायण खत्म हो गया, अब तुम पूछ रहे हो कि सीता राम कौन थे। मैम शायद से लगता है देखो भूल गया, एक बार बता दो। देखो इधर, ये देखो इंटरवल मैंने बताया था ना, इंटरवल ये देखो, कर्सर नहीं चलता है कभी कभी, रुको एक मिनट जरा। देखो ये रहा हमारा इंटरवल, ये थोड़ा हम इंटरवल बना देते हैं। ये रहा हमारा इंटरवल, मिड वैल्यू किधर लाई कर रही है, इधर लाई कर रही है, ठीक है। अब ये मिडल वैल्यू अगर हमारा क्या हुआ, रूट हुआ तो वेरी गुड, और अगर रूट नहीं होगा तो क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक सेकंड देखो ये फिर से शट हो गए। तभी इनकी भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। सो किधर हम एक्सप्लेन कर रहे थे, देखो वापस से हमें इरेज करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, तो इधर हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्सएम क्या होगा। फिर से ये ना आज हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। सो एक्सएम अगर हमारा रूट हुआ तो वेरी गुड, और एक्सएम अगर रूट नहीं होगा तो क्या कर रही है, XM हमारे इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में। यस इट इज डिवाइडिंग माय इंटरवल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, दो इंटरवल हो गया ना, एक इंटरवल क्या बन रहा है, a, xm बन रहा है, और दूसरा इंटरवल क्या बन रहा है, xm, b बन रहा है, ठीक है। तो ये इंटरवल कब कंसीडर करेंगे, जब f ऑफ a और f ऑफ xm का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो वही तो लिखा हमने स्टेप 2 में, केस 2 में देखो, इफ f ऑफ n f ऑफ xm आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन द रूट लाइज इन दिस इंटरवल, ठीक है। अभी पहला Yes, इंटरवल क्या था हमारा, a, xm था, सॉरी पहला इंटरवल क्या था, a, b था। अभी इंटरवल क्या हो गया, a, xm। तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है बेटा, a का वैल्यू तो सेम है, बट b का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। किससे हुआ Change चेंज, b की जगह पे अभी XM क्या से। रखेंगे हम, xm रखेंगे। हाँ अभी हाँ, समझ में XM आया से चेंज हुआ है। हाँ यस। मैम। जब वापस से मिडल वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो उधर b का वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। आई यस बात मैम। समझ में अभी, ठीक है। हाँ मैम। Now if f of, now case 3 भी हम देख लेते हैं फिर हम स्टॉप करेंगे। So if f of into f of xm greater than 0, अभी greater than 0 कब होंगे, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन greater than 0 कब होता है, जब दोनों का साइन सेम होगा तभी ना। मतलब दोनों नेगेटिव हुए तो भी मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों पॉजिटिव हुए तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो दैट मींस f of n f of xm आर ऑफ सेम साइन, ओके। देन यस तो रूट किधर आएगा भाई, मतलब तो रूट तो पक्का एक एक्सएम में नहीं आ रहा, तो देन रूट किधर लाई करेगा, बताओ 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 किधर लाई a करेगा। comma x हाँ हाँ X हाँ, पहले छोटा XM, वाली B. यस, तो ये रूट किधर लाई करेगा, एक्सएम कॉमा बी में लाई करेगा। छोटा वाले पहले लिखते हैं हम इंटरवल का, बड़ा वाले नहीं लिखते हम। एक्सएम छोटा है ना बी से, एक्सएम इज द मिड वैल्यू, सो एक्सएम क्या हो जाएगा, एक्सएम कॉमा बी में आएगा। देन विल गो टू स्टेप 2 विथ, नाउ इज दिस टाइम किसका वैल्यू चेंज होगा, A का। yes, so this time a का वैल्यू will get change with xm. So again आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे, करते रहोगे जब तक आपको वो रूट ना मिल जाए. So this was the algorithm of this step 2 and stop the iteration. Last में हम लिखेंगे therefore stop the iteration, मतलब आप करते जाओगे कहीं पे तो एंड करना पड़ेगा ना. Stop the iteration when desired accuracy is achieved. Desired या फिर कह सकते हो required accuracy is achieved. Okay. So ये हम प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप परेशान ना हो. ठीक है. So that's it for the day. We'll stop it here.